So started with basics Excel, charts, sheets, right? Sales address, हे ते वगैरे. Then we started with data understanding. Data understanding मध्ये आपण column मध्ये काय data आहे and why that column is required, right? ये हमने देखा. Data understanding. Then we used then the next step was data formatting. Data formatting मध्ये कोणते column, कोणते field, why you should format, right? All those things. Along with this, कंपनीतला hierarchy, how is hierarchy मध्ये hierarchy based तुम्ही कसं analysis केलं पाहिजे, country head, region head, right? All those things we covered during data understanding and data formatting. And then उसके बाद any idea? We touched upon a quick insight, conditional formatting, filter, sort. So aggregated values as in total sum in this month, total profit in this year, something aggregated. Okay, yes, hi Praveen. So we covered that part in data understanding, data formatting, then quick insights. Then we saw something related with the data consolidation, lookup function, source table, destination table, lookup value, right? In lookup functions, we have three options: VLOOKUP, HLOOKUP, and XLOOKUP. So based on your requirement, you can follow. And then it works on the same sheet. एक ही शीट पे डेटा है तो भी काम करेगा, अलग अलग शीट पे है तो काम करेगा, एंड it will work on different files, right? ये हमने देखा, अलग अलग फाइल्स के को भी आप कंबाइन करके एक जगह पे लेके आ सकते हैं. And after that, what we covered? Any guess? Oh, it's about the detailed insights. Detailed insights में then we saw pivot table option, right? So pivot table when based on the we started with the questions, and based on that I asked you to create some insights. In real life, you will not get any questions. It just so that you are learning. आपको questions मतलब question के form में it's easy to learn. But in real life आपको ही क्वेश्चन बनाना है, इसका आंसर आपको ही ढूंढना है, and then you need to create an insight, right? Clear? Then in the pivot table we see we touched multiple options such as fixed reference, relative reference, dollar symbol add करते थे, right? Function F4 के साथ. Then हमने देखा optional parameters. When should we use optional parameter? तीन कंपलसरी थे, तीन ऑप्शनल था, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच, राइट? देन उसके बाद हमने देखा व्हाट वाज दैट, लॉजिकल VLOOKUP, मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 2, 5, 10, 15 ऐसे था, बट आपके पास रेंज में वैल्यूज थे, राइट? सो व्हाट यू डिड इज यू यूज्ड Kapil sir, could you please share your screen? not yet shared anything on the screen. So we'll start once the topic start. I'm revising what we learned. Okay. Or else we'll do that. Hope it is well. Can you confirm? Yes, sir, it is. Okay. Okay. So logical VLOOKUP, right? Logic related, and logic के बाद what we saw? HLOOKUP, and then XLOOKUP, right? And why we use XLOOKUP? We have V and H, right? So what was the drawback? Why we started using XLOOKUP? Okay.
Explain properly in English. Can anyone explain why we use XLOOKUP instead of VLOOKUP and HLOOKUP online? Anyone? In, yes, sir. Hmm. Go ahead. So lookups, the lookup value must be in the first column index, but in certain cases, if lookup value is not in the first column index, then in that case we use XLOOKUP. First column index. But I can change my first column, no, based on my selection. If I The selected, value you're uh, yes, sir. The value you're looking for is let's assume backwards. So in that case, we use okay. XLOOKUP. So tell me properly, no, what is backwards or what is? Hello? Okay. So sir, suppose we Yes. have a table array of four column, right? And the lookup Okay, value Shahid. is in the fourth column, Huh. and the value we are looking for is in the first column. So lookups always works uh, Hmm. when lookup value is in the first column, but uh, here the lookup value is in the fourth column, so we use X lookup. Okay. Lookup values in the fourth column. Is it right? What others? Did you understood what he said and can you confirm he is right or wrong? Hmm. बोला क्विकली जो उन्होंने बताया वो सही है कि गलत है कि ओके आपको समझ में आया चलो क्विकली हमारे पास टाइम नहीं है इतना ऑलरेडी 10 minutes so try to create answer in the simple forms or simple words that's why you should practice if the required column is behind or behind you can say behind my lookup value column मतलब lookup value column के पीछे वाला column चाहिए तो I am not able to I cannot use VLOOKUP or HLOOKUP right मतलब the value which is required is before बोल सकते हो before and after before lookup value the column the lookup value or lookup column required lookup column is before my lookup value then I have to use a X lookup इतना ही था ना so try to मतलब थोड़ा to the point specific time लीजिए सोचिए and then answer आपको क्या बोलना है क्या नहीं है but you should be able to answer at least clear if not practice कीजिए आपको पता है but if you are not able to convey आपको जो पता है then it's of no use क्योंकि इंटरव्यू में आपको कन्वे करना है कि आपको क्या क्या आता है और आपको प्रूव करना है कि यू नो समथिंग इट्स नॉट टेस्ट की मतलब आता है कि नहीं इसका टेस्ट नहीं है आप जो आपको आता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं इसका टेस्ट है इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर नॉलेज राइट whether are you able to explain what you have learned और आपका नॉलेज जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या इसका टेस्ट है so work on that part it's equally important मतलब पढ़ाई करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट और एक्सप्लेन करना सामने वाले को जो आपने पढ़ा है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है इन द इंटरव्यू it's never about the knowledge right so hopefully you will be serious the speed with which we are moving ऐसे ही और एक महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा for 7 and 8 that time I don't think so you will be so much serious so it's high time you should be serious homework कीजिए and सब पे ध्यान like you need to what allocate your time और balance between the things study करना है communication भी improve करना है explanation भी करना आना है
प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, रिज्यूमे भी करना है, ज्यादा दिन नहीं है ना, 3-4 months, not a big deal. So 3-4 months um, you can avoid going outside or party or enjoy, थोड़ा उसको ब्रेक लगा सकते हैं. Once you get a job, maybe you will have a good, right? तुम्ही करू शकता सगळे. So you will have ample time in your hand. Hopefully you will do better. चलो next, इसके बाद हमने क्या देखा था? VLOOKUP, XLOOKUP, XLOOKUP, sorry, pivot table में then we started with the pivot table. उसके बाद हमने थोड़ा classical pivot table भी देखा बीच में. Then we used some conditional formatting, then value field setting, right? हमने values, we started using the percentage out of 100 कितने percent लोग हैं out of ये, because the actual value is too much, you cannot express or you cannot convey the message properly. फिर हमने बाद pivot chart भी देखा. Parallelly you can create pivot charts with the pivot table. फिर data visualization के 3 principles, chart title, charts legend, right, axis titles, ये 3 important है, right? So that you can show, और वो 3D avoid करना है, best possible recommended chart use करो, don't think more. Specialized chart आपको चाहिए तो first understand कि वो क्या message convey कर रहा है, then you can use. So try to use the recommended chart, right? फिर हमने वो field list का on off का बटन देखा था, किसी को इंटरव्यू में पूछा था वो ऑन ऑफ कैसे होता है. स्पेशल मेन्यूज देखे थे ऊपर, जैसे हम टेबल इंसर्ट करते तो टेबल रिलेटेड मेन्यू आएगा, चार्ट इंसर्ट करेंगे चार्ट रिलेटेड, पिवोट टेबल इंसर्ट करेंगे तो पिवोट टेबल का मेन्यू आएगा. ऊपर अलग अलग मेन्यू आए थे, राइट? फिर उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइन और फिल्टर, ऐसा कुछ ग्राफिक्स का देखा था, राइट? सो टाइमलाइन इंसर्ट करने से आपको डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो डेट फैक्टर पे. स्लाइसर एंड टाइमलाइन, ऐसे 2 चीजें हमने इंसर्ट की थी, उससे रिलेटेड अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग मेन्यू ऊपर थे. आपको डैशबोर्ड क्रिएट करने में इट विल बी इजी, राइट? क्लियर? ओके. और इसके बाद क्या देखा था हमने, एनी आइडिया? पिवट टेबल में और कुछ, समथिंग वी आर मिसिंग? हाँ, यस, कस्टम ग्रुपिंग सीखा था. मतलब 2-3 लोगों के एक मैनेजर है, राइट? तो उसके लिए हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था. फिर मैनेजर लेवल एनालिसिस, राइट? फिर वो सब टोटल ऑन ऑफ का कुछ था वहां पे, ग्रैंड टोटल ऑन, ग्रैंड टोटल ऑफ, all those things, right? Then उसके बाद then we started with the what if analysis, I guess. What if analysis में हमने we started with scenario manager, नहीं sorry, goal sequence, जहाँ पे एक only one goal I can achieve, as in मेरे पास calculation है, I need to get output based on the formula or based on the parameter. फिर उसके बाद हमने देखा सॉल्वर, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल पैरामीटर, मार्कशीट, समथिंग रिलेटेड टू दैट बिजनेस सिनेरियो यू कैन इंसर्ट. देन सॉल्वर हमने किया. उससे पहले हमने सॉल्वर और डेटा एनालिसिस टूल पैक ऐड करना सीखा. इट इज नॉट अवेलेबल डायरेक्टली, राइट? यू नीड टू इनेबल इट. कहाँ से? फाइल्स, ऑप्शंस, एड-इन्स में, then you can select go option and then click there, right? Clear? Then solver हो गया, goal seek हो गया, and then we started with scenario manager, different scenarios such as मेरे पास दिवाली के लिए डिस्काउंट देना है, बिग बिलियन डे का डिस्काउंट देना है, so all those condition, उस डिस्काउंट के ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना होगा और सम सर्टेन कंडीशन के ऊपर कितना होगा, और उसका हमने रिपोर्ट निकाला डिटेल्ड, राइट? क्लियर? समरी शीट वगैरह जनरेट किया. देन वी स्टार्टेड विद द डेटा टेबल, जहाँ पे इंक्रीमेंटल फॉर्मूला आपको
कैलकुलेशंस करना है, एक फॉर्मूला है, उसके अलग अलग इनपुट्स चेंज करना है। हमने एक एग्जांपल लिया था ईएमआई का, सो वी स्टार्टेड चेंजिंग इंटरेस्ट रेट एज वेल एज पीरियड्स और टेन्योर, देन उसके एक एक चेक किया, देन उसके बाद पहले रो चेक किया, फिर कॉलम किया, देन वी यूज्ड रो एंड कॉलम, राइट। फिर उसके बेसिस पे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा था। क्लियर सबको? देन scenario manager, what if analysis, then we touched upon the data analysis tool pack जो mostly statistics related है। then we covered correlation, covariance, छोटे small things, F test, ANOVA, T test वगैरह जो भी है, maybe you need to understand and then you can create। important thing वहां पे देखा था कि descriptive statistics का हमने देखा था, where each कॉलम के सारे मीन, मैक्स, काउंट और क्या क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कुर्टोसिस, स्क्यूनेस, मीन, मीडियन, मोड्स, राइट, कुर्टोसिस, स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मैक्स और सम वेरिएंस कोवेरिएंस वगैरह भी था उसमें। So all those things we have seen, count, even count option was there, right? Clear सब लोगों को? So this is what we covered in last 8 days. So what we are going to cover today is one of the more advanced topic. Whatever आपने जो अभी तक सीखा है उससे थोड़ा और आगे जाके शुरू होता है ये topic. So this topic is nothing but a macros, introduction to macros. It's not micro, MIC नहीं है, MACRO, macros. So this macro is nothing but a programming feature. जैसे मान लीजिए आप जो एक्सेल आप देख रहे हो यहाँ पे, so whatever you are seeing, ये एक्सेल एप्लीकेशन है, आप ऊपर टैब पे क्लिक करते हो, टैब रिलेटेड आते हैं, वापस किसी चार्ट के ऊपर और कुछ करना है तो क्लिक करते हो, राइट। So what is this? This is nothing but a, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे मुझे दिख रहा है सब कुछ पिक्चर के फॉर्म में, नहीं तो कुछ आइकन्स के फॉर्म में दिख रहा है, एंड आई गो एंड क्लिक दैट ऑप्शन बाय यूजिंग अ माउस। बट जनरली प्रोग्राम्स आर नॉट मेंट फॉर GUI, मतलब GUI ये जो अभी इन्वेंशन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने और एप्पल ने क्रिएट किया, इससे पहले पीपल यूज दिस, जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा है क्या, CMD, पहले के कंप्यूटर ऐसे दिखते थे, दैट्स इट, ब्लैक स्क्रीन और आगे कमांड लिखना है। तो क्या कमांड हो सकता था, कुछ भी। देखिए मुझे IP एड्रेस निकालना है मेरे कंप्यूटर का, तो IP config /all नाम का एक कमांड आता है, इंटर, मुझे डिटेल्स मिल जाएंगे। मुझे कुछ वाईफाई ऑन करना है तो वाईफाई ऑन का कमांड डालो, ऑन वाईफाई, ऑफ वाईफाई, जो भी रहेगा। कमांड एक्चुअली इतने सिंपल नहीं रहते, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। मे बी CD से पता चलता है कि मेरा लोकेशन है, कहाँ पे लोकेशन, फोल्डर में, कौन से फोल्डर में हूँ, ग्राफिकल, CD डबल डॉट, आई गो बैकवर्ड्स, राइट। If I want to select, maybe let me install the tree, हाँ, ट्री नाम डालोगे आपके कंप्यूटर का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आ जाए। ये देखिए ऑनलाइन दिख रहा है क्या सबको? So this is how earlier computer used to be. अभी के भी कंप्यूटर ऐसे ही है। If you use the Linux operating system, Linux, Ubuntu वगैरह, तो ये इसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब मशीन और ह्यूमन के बीच में जो है उसको इंटरफेस बोलते हैं। सो ये क्या है, कमांड लाइन, तो कमांड लाइन के थ्रू मशीन, कमांड लाइन के थ्रू ह्यूमन इज यूजिंग द मशीन, तो इसको CLI बोलेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस। और मैं ग्राफिक्स यूज कर रहा हूँ, मतलब क्लिक कर रहा हूँ कहीं जाके, मूव कर रहा हूँ माउस, तो ये क्या होगा, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, क्योंकि मशीन और ह्यूमन के बीच ये ग्राफिकल आ रहा है सब कुछ, तो ये हो गया GUI। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज GUI,
उबंटू, लिनक्स, ये सारे CLI बेस्ड है। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। तो बट आप बोलोगे सर ये अल्टीमेटली पाई जो विंडोज बना है ये आपको अभी दिख रहा है ग्राफिकल, बट इसका एक्चुअल जो प्रोग्राम है ये भी किसी ना किसी ने लिखा है। दिस इज नथिंग बट जैसे हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, वैसे ही विंडोज का भी प्रोग्राम है आपको, इसलिए आपको ये CLI दिख रहा है। ये CLI के थ्रू आप अलग अलग विंडोज के कमांड और विंडोज का जो बना है सोर्स कोड बोलते हैं उसको, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो GUI क्या होता है कि CLI ही रहता है, नीचे अंडरलाइन सब कुछ कमांड लाइन है, तो कमांड लाइन के ऊपर इसको बोलते हैं रैपर। जैसे चॉकलेट चॉकलेट को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक कवर रहता है, प्लास्टिक रहता है, राइट, वो अट्रैक्टिव दिखता है आपको। वैसे ही विंडोज का जो नीचे दिया गया है कोड, उसको ढकने के लिए दे हैव बिल्ट अ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर? वैसे ही एक्सेल जो भी है, एक्सेल भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर पे चलने वाला प्रोग्राम है, राइट? तो ये बनेगा तो अल्टीमेटली किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। जैसे मशीन बनता है छोटे छोटे पार्ट से, मेटल कंपोनेंट जो भी है, राइट, वैसे ही कोई भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोग्राम और कोड लिखा होता है। तो वैसे ही ये जो एक्सेल बना है, दिस इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में एक्सेल बना है। क्लियर सबको? ये ग्राफिकल जो GUI देख रहे हो आप एक्सेल का, ये एक्चुअली रैपर है, इसके नीचे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज देखेंगे, कैसे यूज करना है उसको, कैसे हैंडल करना है। ओके? और डीलिंग विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप जब भी यूज करते हो आपको बहुत ज्यादा फीचर मिलता है, क्योंकि ये रैपर हट जाता है, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। आप क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस क्या है, मेरे पास जितने ऑप्शन दिख रहे हैं उतने ऑप्शन क्लिक कर सकता हूँ। कैन आई क्लिक हियर? ये ब्लैंक है, राइट, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। बट CLI में ऐसे नहीं होता, CLI में सब कुछ एक्सपोज्ड रहता है। आपको जो प्रोग्राम बिल्ड करना है, लॉजिक खुद से बनाइए, खुद का ऑप्शन क्रिएट कीजिए और यूज कीजिए। सो जनरली जो CLI रहते हैं और लिनक्स वगैरह यूज करते हैं, ये ऑटोमेशन के लिए यूज होता है और हेवी वर्क के लिए यूज होता है। सो सिमिलरली जो एक्सेल है, आपको एक्सेल के ऊपर एक मैक्रोज नाम का फंक्शन दिया गया है, वो डायरेक्टली VBA के ऊपर रन होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और इसका यूज होता है ऑटोमेशन के लिए। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप VBA यूज करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब ऐसा यूजर फ्रेंडली नहीं है जितना यूजर फ्रेंडली आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके जो चेंज कर रहे हो, यहाँ पे होम पे जाके बोल्ड, इसका 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा आपको VBA में। दैट इज नॉट इजी, राइट? सो इसीलिए दैट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको मैक्रोज इनेबल करता है, वो ऑप्शन हिडन रहता है, क्योंकि दैट इज ओनली फॉर द डेवलपर और एडवांस यूजर्स। तो उसको कैसे इनेबल करना है? कैन ओके, बाय द वे, कैन एनीवन कंफर्म वेदर डू यू हैव दिस ऑप्शन? ये ऑप्शन किसी केस में दिख रहा है क्या? No, sir. ओके, देखिए हो यहाँ पे दिस डेवलपर ऑप्शन। Okay, so first then you need to enable this option. कैसे enable करना है? क्लिक कीजिए फाइल, go to options, ओके, ऑप्शंस के बाद कस्टमाइज रिबन, ये दिख रहा है क्या? कस्टमाइज रिबन दिख रहा है? एंड देन इधर आप नीचे आ सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, ये मेन्यू पे, ये देख रहे हो क्या? ये जो मेन्यू दिख रहा है साइड में, ये मेन्यू के ऊपर आपको कहीं ना कहीं डेवलपर ऑप्शन मिलेगा। कैसे? ये देखिए, ये पे स्क्रॉल नीचे गिर दीजिए, कैन यू सी डेवलपर? सो यू नीड टू इनेबल दिस, ओके। आप यहाँ पे टिक मार्क कीजिए, वंस यू सिलेक्ट प्रेस ओके, देन यू विल सी दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन आप देख सकते हो,
क्योंकि ये हिडन है बिकॉज दिस इज नॉट रेगुलर यूजर के लिए नहीं बनाई है, सो इट नीड्स अ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे एक्सेल विल ब्रेक, मतलब एक्सेल हैंग हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आप कोड से डील कर रहे हो ना, वहां पे आपको कुछ गलत हुआ तो कंप्लीट प्रोग्राम विल ब्रेक। सो टू अवॉइड दिस थिंग्स इट्स ऑलरेडी हिडन, तो इसलिए आपको स्पेशली इनेबल करना पड़ता है। एंड देन वंस यू इनेबल, यहाँ पे अलग ऑप्शंस मिलेंगे, देखिए मैक्रोज, विजुअल बेसिक, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए नया विंडो ओपन होता है, ये हो गया विजुअल बेसिक फॉर एडिटर। और यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये अलग अलग शीट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए माय फर्स्ट मैक्रो, मास्टर डेटा, डेटा टूल, कंसोलिडेशन। ओके, ये सारी शीट कहाँ पे है, ये दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ मेरे ओरिजिनल फाइल में, ये देखिए राइट, ये अलग अलग शीट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल दिस, ये सॉल्वर है यहाँ पे, VBA प्रोजेक्ट्स है, अलग अलग मैक्रोज के अलग अलग एप्लीकेशंस है, तो है बहुत सारे, यू कैन सी। इफ आई डोंट वांट आई कैन क्लोज, ठीक है। तो मैक्रोज, लेट्स सी कि वी कैन डू। चलो, आपको अभी मान लीजिए आपको एक कंडीशन दिया है, एज अ ऑटोमेशन स्टेप आपको एक नया शीट क्रिएट करना है, और नया शीट क्रिएट करना है, कैसे करोगे आप नया शीट एक्सेल में? आई कैन यूज दिस सिंबल, यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये प्लस आइकन, आई कैन यूज दैट प्लस ऑप्शन। एंड देन उसके बाद आपको उसमें मान लीजिए क्लिक करना है, और आपको इसमें लिखना है कि माय फर्स्ट मैक्रो, ऐसे लिखना है। क्लियर? इतना आपको स्टेप करना है, बट ये स्टेप आपको लाइक 100 टाइम्स 200 टाइम्स करना है। जस्ट एन एग्जांपल, इसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन अलग है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी स्टार्ट क्रिएटिंग वन बाय वन, मतलब मैन्युअली हम कर सकते हैं क्या वन बाय वन शीट? सो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब एक ऐसा प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, एक क्लिक करते वो अपने आप रन होना चाहिए। तो मैं 100 बार क्लिक करूंगा तो 100 बार हो जाएगा, 200 बार 200, राइट? सो सिंपल, आई डोंट हैव टू डू मच लॉट ऑफ वर्क। सो लेट्स डू देन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट दिस शीट फर्स्ट। यहाँ पे आ जाता हूँ। चलो, तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? बेसिक, आपको यहाँ पे जाके कोड लिखना है, आपको ये ऑटोमेशन करना है तो कोड लिखना है, बट कोड लिखना इज बिट डिफिकल्ट, उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, राइट? पहले ही पाइथन वगैरह आपने सीखा होगा, देन वन मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली, सब लोग फॉलो नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक्सेल ने क्या किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने, दे हैव गिवन वन मोर शॉर्टकट। माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है, आपको जो करना है ना करिए, मैं बैकग्राउंड में खुद का प्रोग्राम बनाऊंगा। तो उसके लिए ऑप्शन है कॉल्ड मैक्रोस, और ये जो है मैक्रोस, ये माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट में मिलेगा, सेम ऑप्शन, मैक्रोस डेवलपर ऑप्शन। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जो भी एप्लीकेशन है, पावर ऑटोमेशन, XYZ, जो भी ऑफिस के टूल्स है, इवन ईमेल, सब में ये मैक्रोस ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू क्लिक ऑन अ मैक्रो। पहले तो मैक्रो हमने कुछ किया नहीं है, यहाँ पे मैक्रो का मेन्यू है, यहाँ पे देखिए रन है, एडिट है, क्रिएट है, डिलीट है। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल स्टार्ट विथ रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन। यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन दिख रहा है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस, आई विल स्टार्ट वर्किंग, मुझे जो करना है वो करते जाऊंगा मैं, एंड एक्सेल विल क्रिएट इट्स ओन प्रोग्राम। चलो, सो आई विल क्लिक रिकॉर्ड मैक्रो, देन आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे। मैक्रो का नाम क्या देना है, दीजिए आप, कुछ भी नाम दे सकते हो, माय फर्स्ट मैक्रो, राइट? यहाँ पे शॉर्टकट देना है तो शॉर्टकट दीजिए ए। दिस वर्कबुक, मतलब ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, इसी एक्सेल वर्कबुक में, या ऑप्शन देखिए वहां पे मल्टीपल है, नए वर्कबुक में, मतलब ये जो प्रोग्राम बनाओगे किसी नए वर्कबुक में स्टोर करोगे क्या? और नहीं तो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक मतलब एक वर्कबुक ऐसा
जो आप खुद यूज करते हो। और इसका एडवांटेज क्या है, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में ये मैक्रो स्टोर करने से क्या होता है, कोई भी आप फाइल ओपन करो, इसके बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वो मैक्रो सेव रहेगा। मैंने दिस वर्कबुक किया तो वो प्रोग्राम इसी वर्कबुक में रहेगा, दूसरे एक्सेल फाइल में मैं एक्सेस नहीं कर सकता उसको, राइट। तो ये दोनों का नीचे का ऑप्शन वो है जो इसी फाइल में रहेगा मेरा वो प्रोग्राम। बट पर्सनल मैक्रो वर्कबुक करूंगा तो वो सारे एक्सेल के कोई भी आप फाइल खोलो, नया भी क्रिएट करो, उसमें वो मैक्रो अवेलेबल रहेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। टाइम बीइंग आई विल स्टोर इन द दिस वर्कबुक ओनली, और लिख लेता हूँ यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो माय फर्स्ट मैक्रो जस्ट टू लर्न, ओके लिख सकते हो, प्रेस ओके। अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, देखिए ये बोल रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, ओके। एंड देन यहाँ पे भी नीचे भी आ रहा है, ये जो आइकन दिख रहा है इसको भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक करने से वो स्टॉप हो जाता है। ये देखिए अ मैक्रो इज करेंटली रनिंग, दिखेगा क्या आपको, अ मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप, ओके आई कैन नॉट जूम। चलो अभी आपको जो करना है वो कीजिए। आपको टास्क क्या करना था, एक नया शीट खोलना है, राइट। नए शीट में लिखना है माय फर्स्ट मैक्रो, ओके इतना लिखना है। दिस इज द सिंपल केस। व्हाट आई विल डू इज देन आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं वापस जाके क्लिक करता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये देखिए क्लिक हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, वापस से रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ मैक्रो जो मेन्यू है यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ये देखिए हो गया। और यहाँ पे ऑप्शंस है रन, स्टेप, एडिट, डिलीट और अलग ऑप्शंस। क्लियर। सो ये मैं रन करके देखता हूँ क्या हो गया। हमने ऑटोमेशन तो किया है अभी ऑलरेडी, सो लेट्स रन दिस। फर्स्ट पहले तो डिलीट कर लेता हूँ। आई ऑलरेडी इट कैन क्रिएट मल्टीपल शीट्स, ऐसा नहीं कि उसको कुछ लिमिट है शीट का। ओके यहाँ पे आया हूँ मैं, मेरा ओरिजिनल कंडीशन, क्लिक ऑन मैक्रो, क्लिक ऑन माय फर्स्ट मैक्रो, रन कीजिए। शीट 3 क्रिएट हो गया, ऊपर आ गया। वापस यहाँ से कंट्रोल ए हमने सिलेक्ट किया था, क्लिक कंट्रोल ए, शीट 4 आ गया नीचे, नीचे देखिए आ गया कंट्रोल शीट 5। अभी प्रेस कीजिए, कितने बार आपको चाहिए उतने बार आप क्रिएट होगा वो, बिकॉज यू ऑटोमेटेड द प्रोसेस। ये इसका इनिशियल इंट्रोडक्शन है, राइट। व्हाट नाउ आई कैन डू इज, लेट्स इन रियल वर्ल्ड में इसको कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं। मान लीजिए आप एक एनालिस्ट हैं और जो भी आप एनालिसिस करोगे हर मंथ आपको रिपीट करना रहता है, क्योंकि हर मंथ इन्वेंट्री का डेटा चेंज होता है और आपका जो डेटा आएगा वो सेम फॉर्मेट में आता है हर रोज, और आपको जो रिपोर्ट बनाना है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। मान लीजिए सिमिलर है, हर मंथ आपको एक रिपोर्ट जनरेट करना होता है किसी इन्वेंट्री रिलेटेड, तो प्राइस रिलेटेड, स्ट्रेटेजी रिलेटेड, और कितना खर्चा हुआ, सेल एंड प्रॉफिट रिलेटेड, जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम। तो ऐसे केस में हर बार आप वही प्रोसेस करते बैठोगे क्या, हर महीने वही करना है, डेटा कंसोलिडेट करना है, एक्स लुकअप लगाना है, फिर वो कंडीशनल फॉर्मेट करना है, पिवट लगाना है, चार्ट बनाना है और वो चार्ट दिखाना है। तो ये जो प्रोसेस है यही फॉलो करोगे क्या हर बार। सो मैन्युअली करना इज ओके, मतलब एक दो बार कर सकते हो, बट व्हाट इफ आई टेल यू आप डायरेक्टली सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, विल दैट सेव योर लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब आपके एफर्ट्स कम होगा। तो उसको कैसे करना है विल सी नाउ। पहले तो लेट मी डिलीट ऑल दिस फाइल्स। ओके चलो ये डेटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ग्रेड, एक्सपीरियंस वगैरह, ओके ये अलग अलग डेटा है। मान लीजिए एम्प्लॉय ज्वाइन हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हर महीने में आपको ये ज्वाइनिंग का डेटा आता है। क्लियर। तो क्या एक ही महीने में लोग ज्वाइन होते हैं क्या, हर महीने में कोई ना कोई ज्वाइन होगा, राइट।
तो हर महीने में आपको रिपोर्ट आएगा, तो हर महीने में आपको जो भी एनालिसिस करना है वो आप एनालिसिस करोगे। क्लियर? सो ये प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैक्रोस। तो क्या करना है, लेट्स सी कि ये मेरा जो एक्सेल का आ रहा है, पहले तो मुझे ये दोनों को कैपिटल लेटर में करना है, देन ये डेट ऑफ बर्थ जो है इसको फॉर्मेट करना है। अच्छा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए ना कैसे, इट्स नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, नंबर्स वगैरह करना है, राइट? फॉर्मेटिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग तो हो गया होगा, बट डेटा फॉर्मेटिंग हर बार करना पड़ेगा आपको, राइट? तो वो मैं कर सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स डू दिस प्रोसेस ऑटोमेटिकली। तो रिक्वायरमेंट समझिए, ये डायरेक्टली भी ये मास्टर डेटा है जो मुझे कोई सिस्टम से आता है, मेरे एसएपी सिस्टम और की जो भी सिस्टम रहेगा, मुझे ये डेटा कॉपी करना है और एक नए शीट में पेस्ट कर लेता हूँ। नहीं तो क्या होगा ना, मैक्रो ओरिजिनल डेटा पे चलेगा। इन केस मुझे बैकअप चाहिए तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट इट, मुझे वापस से वो फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। सो गुड, मतलब मैं अभी के लिए एक काम करता हूँ, ये डेटा कॉपी करके एक नए शीट में पेस्ट करता हूँ और उसके ऊपर डेटा फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। ओके, चलो। सो व्हाट वी विल डू इज, वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस, डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, राइट, और सॉरी रिकॉर्ड मैक्रोज, क्लिक, बोलिए यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग डेटा अंडरस्कोर डेटा फॉर्मेटिंग, राइट? न्यू ज्वाइनिंग डेटा फॉर्मेटिंग, दिस शुड बी यूज्ड फॉर डेटा फॉर्मेटिंग। क्लियर? डेटा फॉर्मेटिंग के लिए यूज करना है यही वर्कबुक में। आइडियली यू शुड क्रिएट अ पर्सनल वर्कबुक, ठीक है? अभी फॉर माय सेक आई एम क्रिएटिंग इन दिस, और इसको ऑप्शन देता हूँ कंट्रोल, जो कुछ भी दे सकते हो, बी दे दो, ए बी, क्लिक, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। अभी हमने क्या बोला था, विल स्टार्ट कॉपिंग द डेटा। पहले तो मैं ये डेटा कॉपी कैसे, कंट्रोल सी, नया शीट खोल देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी, हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। तो व्हाट आई विल डू, ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। कैसे करना है फॉर्मेटिंग, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, जाके डेट, क्लिक, ओके, आगे डेट हो गया। फिर ये हेडिंग को थोड़ा अच्छा मैं बना देता हूँ, होम बोल्ड करके और येलो वगैरह ऐसा कुछ, देन आई विल अलाइन, इनको प्रॉपरली अलाइन कर देता हूँ। ओके, जो भी थोड़ा फॉर्मेटिंग है तो यू कैन परफॉर्म दिस फॉर्मेटिंग। थोड़ा बॉर्डर ऑल कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, राइट? ये दिख रहा है प्रॉपर अभी? यू कैन सेंड इट टू योर मैनेजर हुएर। इसको मैं करेंसी करना पड़ेगा, फॉर्मेट सेल्स करेंसी, राइट, इंडियन रुपी, प्रेस ओके, जो भी यहाँ इंडियन रुपी पे आएगा, राइट? सो ये इतना हमें करना है। गुड, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, पहले तो लेट मी जस्ट अ सेकेंड, ओके, फॉरगेट। तो ये मेरा इतना काम है, अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके, स्टॉप। सो आई डोंट वांट टू डिलीट मास्टर डेटा। अभी जाके एक बार मैक्रोज में क्या क्या बनाते हैं, पहले तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, कैन यू सी न्यू ज्वाइनी डेटा फॉर्मेटिंग, क्लिक कीजिए इस पे, और यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हो आप। एडिट करने से क्या होता है, नया मेन्यू खुलता है और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, सब्जेक्ट सब न्यू ज्वाइनी डेटा फॉर्मेटिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल बी, रेंज A1 to J20, डॉट सिलेक्ट, देन सिलेक्शन डॉट कॉपी, ऐसा कुछ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमने स्टेप फॉलो किए ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया है। देखिए, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, फिर क्या बोल रहा है, कॉलम इतना तो इतना वाइड कर दीजिए, फिर सिलेक्ट डॉट नंबर फॉर्मेट, MDDYY। ओके, पूरा जो आपने किया है, एवरीथिंग रिटन इन सम फॉर्मेट। ये देखिए, अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, ये अलाइनमेंट से कुछ कुछ इतना बड़ा प्रोग्राम उसने क्रिएट किया है, देखिए। सो इज इट पॉसिबल, स्टेप्स हमारे सिंपल थे, बट इन द एंड बैकग्राउंड में ये क्रिएट होता है। दिस इज व्हाट इज नथिंग बट अ VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आप देखो इसका टाइटल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन।
इसके अलग अलग ये है कुछ मॉड्यूल वगैरह, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन यूज फेयर बिट अंडरस्टैंड हो गया। सो लेट मी कम बैक टू अवर शेड्यूल। अभी मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में कई लोग आए, नेक्स्ट मंथ में इतने लोग आए न्यू ज्वाइन, आई नीड टू डू अ फॉर्मेटिंग। तो हर बार वही याद है, क्योंकि एक तो मेरा सिस्टम सेम है, सिस्टम से जो भी डेटा आता है वो सेम ही रहता है, डेट फॉर्मेट ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि एसएपी हो कोई भी ईआरपी सिस्टम हो ऐसे ही आता है। चलो देन ऑटोमेट तो आपने किया है, डेटा फॉर्मेटिंग कर दीजिए। कैसे करना है? मैक्रोज देन न्यू ज्वाइनी डेटा रन, हो गया। शीट 25 बना नीचे, शीट 25 एंड डेटा फॉर्मेट हो गया। और एक बार रन करना है आपको, कर दीजिए। कंट्रोल बी है, ऑप्शन सिलेक्ट किया था हमने, कंट्रोल बी, शीट 26 हो गया। सो यू कैन ऑटोमेट इंटायर थिंग। इसके आगे जाके भी आप कर सकते हो जो भी आपको ऑप्शंस करना है, ऑल दोस थिंग्स। क्लियर है सबको? सो इशू कहाँ पे आता है? लेट अस सी कि नेक्स्ट मंथ में इतने ही लोग ज्वाइन हो गए मेरे, सिर्फ इतने जो भी है 11 लोग 10 लोग, इतने लोग ज्वाइन हो गए। तो ये रिपोर्ट आया मेरे पास। तो एज यूजुअल मुझे पता है डेटा अंडरस्टैंड क्या डेटा है, फॉर्मेटिंग करना है, मेरे पास रेडी है। क्या? मैक्रोज डेवलपर्स मैक्रोज रन कीजिए, न्यू ज्वाइनी फॉर्मेटिंग रन, हो गया आपका फॉर्मेटिंग। क्लियर? शीट 28। बट इसमें एक इशू है, नीचे डेटा ऐड हुआ है, और एल्स देयर मोर ऑप्शन। व्हाट इफ 10 और 20 की जगह लिए मल्टीपल लोग आए, बहुत मास हो गए, ओके इतने लोग आ गए, चलो बहुत 31-40 से लोग आ गए, बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ डेवलपर ऑप्शन मैक्रोज रन, क्या हो गया? मेरे पास तो 30 लोग थे, बट इसने तो 20 लिए, क्यों? बट हमने तो ऐसा प्रोग्राम नहीं था, मतलब हमने तो लिखा था ना 20 लोगों के लिए, हमने तो जितना डेटा है उतना सिलेक्ट किया। अभी उस महीने में 20 आ गए तो हमारा थोड़ी गलती है, तो आपको वापस प्रोग्राम लिखना पड़ेगा सब कुछ, राइट? सो ये अवॉइड करने के लिए ये क्या करता है, जितना आपने कॉपी किया है उतना ही सिलेक्ट करता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। दिस हैज टू बी रिलेटिव, जितना डेटा है उतना करना है, राइट? क्लियर? तो ये इनेबल करने के लिए लेट्स डू वन मोर थिंग देन। पहले तो ये कितना है, 41 लोग है, इसके लिए वापस रिकॉर्ड करो एक नया फ्रॉम रिलेटिव रेफरेंस डेवलपर ऑप्शन। देयर इज ये ऑप्शन भी है, बट डोंट ट्राई टू मैच, मतलब इसका ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो, बट ये थोड़ा एडवांस है, इसमें आपको बताना पड़ता है, बट इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। क्लिक ऑन द मैक्रो। चलो बताइए, एक नया मैक्रो क्रिएट करना है मुझे, कैसे करना है? नया मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो को दीजिए न्यू ज्वाइनी अपडेटेड, ओके क्लियर? यहाँ पे इसको कंट्रोल सी दीजिए, अभी यू कैन डू एनीथिंग, नॉट एन इशू। अपडेटेड मैक्रो, प्रेस ओके। अभी क्या करना है, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन यूज शॉर्टकट। मतलब क्या है, ए और 1 ये सेल पहले सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डेटा हमेशा रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड, तो जहां तक है वहां सिलेक्ट करेगा। देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जितना डेटा है उतना सिलेक्ट करेगा। देन सिलेक्ट कंट्रोल सी, देन नया ऑप्शन ओपन कीजिए, नया शीट, वापस से नया पहला सेल सिलेक्ट कीजिए A1 एंड दिस, देन कंट्रोल, नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल सी, आउट ऑफ, मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो रहा है, सो आई डोंट नो कौन, बैकग्राउंड में कुछ तो शुरू है, इतना भी मेमोरी लोड नहीं है, आई डोंट नो।
कौन दे रहा है? स्क्रीन रिकॉर्डर 92% CPU यूसेज है, सबसे ज्यादा स्क्रीन रिकॉर्डर, फिर उसके बाद गूगल क्रोम, मेमोरी इतना है, गूगल क्रोम ले रहा है, ओके, और एक्सेल दे रहा है 200 MB, कुछ किया भी नहीं है, 200 MB, 40 रिकॉर्ड्स के लिए 200 MB, सो गुड। चलो, नॉट एन इशू, आई विल ट्राई वंस अगेन। सो कहाँ पे थे? रिकॉर्ड हो ही रहा है मैक्रो, इट्स चलो ठीक है, नॉट एन इशू। चलो ये सिलेक्ट हो गया, होपफुली लेट अस सी आउट ऑफ स्टैक, मतलब दोज हु आर फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, स्टैक क्या होता है पता है क्या? हीप, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी गया, एक्सेल क्लोज। अरे यार, ठीक है, जस्ट हु आर फ्रॉम कंप्यूटर, हीप स्टैक क्या रहता है? नोबडी इज फ्रॉम कंप्यूटर। Data structure. यस, डेटा स्ट्रक्चर है, बट वो मेमोरी के टाइप्स है, हीप मेमोरी, स्टैक वर्चुअल मेमोरी। मेमोरी। चलो गुड गुड, मतलब जो है ना, I guess है ना, it is like first in, first हीप out. एंड स्टैक, बाइदर टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, उतना ही है। टेम्पररी मेमोरी जो आपका रैम पे रहता है, टेम्पररी हार्ड डिस्क पे रहता है, तो उसकी अलग अलग वेरिएशन है, हीप एंड स्टैक। तो जो फास्ट में एक्सेस करना है वो हीप में रहता है, स्टैक में रहता है, हीप में परमानेंटली थोड़ा मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन वाला रहता है। चलो कहाँ तक थे? कुछ हो गया। सो व्हाट विल डू, विल स्टार्ट अगेन डेवलपर रिकॉर्ड मैक्रो, न्यू ज्वाइनी, अपडेटेड, यहाँ पे कंट्रोल ए, बाय द वे कंट्रोल ए, और चलो क्यू कर देते हैं, ओके, देन क्लिक दिस, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे राइट साइड देन डाउन, कॉपी, हो गया, ओके हो गया, देन कंट्रोल वी, मे बी हमने बहुत ज्यादा शीट्स ओपन किए थे ना, 26, आई गेस दैट्स द इशू। चलो ये हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, थोड़ा फॉर्मेट कर लीजिए, डबल क्लिक, पूरे कॉलम सिलेक्ट करके डबल क्लिक करने से फॉर्मेट हो जाता है। अगेन फर्स्ट ये कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड, उसके बाद होम में जाके बोल्ड कीजिए, देन येलो, देन इसको सेंटर अलाइन, राइट, फिर उसके बाद जाना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देन उसके बाद हमें यूज करना है ऑल बॉर्डर, यही करना था, यही किया है हमने। देन वन मोर थिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ फॉर्मेट कैसे करना है? क्लिक कीजिए इस पे, नहीं नहीं नहीं, पहले तो सिलेक्शन, डायनामिक सिलेक्शन चाहिए ना, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, इतना, देन राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, देन डेट, प्रेस ओके, हो गया। अगेन CTC, क्लिक राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देन राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स करेंसी। Why this shift control down? क्योंकि डायनामिकली सिलेक्ट होना चाहिए ना मेरा डेटा, इसीलिए, है ना। That's it, इतना ही करना था। So let's go to developer option, stop recording, हो गया। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं मास्टर शीट में, लेट मी डिलीट दिस शीट वन जो हमने की, डिलीट ही कर देते, why to bother, है हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट, मास्टर डेटा है, लेट्स यूज डेवलपर मैक्रोज, न्यू ज्वाइनी मैक्रोज, राइट, है ना, हो गया, क्लियर। नाउ डिलीट द डेटा, मास्टर डेटा डिलीट कीजिए थोड़ा, ये देखिए इतना, अभी 12 लोग हैं नेक्स्ट मंथ में। अगेन रन द मैक्रो, डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज और कंट्रोल क्यू, हो गया, उतना ही हो रहा है। एंड डेटा, डेटा ऐड कीजिए, कॉपी पेस्ट, चलो पेस्ट हो गया, 34, देन अगेन डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, आ गया। So this is how you can automate.
नॉट ओनली दिस, यहाँ पे आपने सम का फॉर्मूला लिखा तो वो सम निकालेगा, इसको टेबल में इंसर्ट किया तो टेबल, पिवोट टेबल डाल दिया तो पिवोट टेबल। आपको एक्चुअली जो आप कर रहे हो उसको ही कॉपी कर रहे हैं, इट इज नॉट एडिंग, खुद से वो कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। जो आपको करना है सिर्फ वो रिलेटिव रेफरेंस का आपको देखना है बस। इसके बाद जो चार्ट निकालना है चार्ट निकालो, पिवोट निकालना है पिवोट निकालो, डेटा डिलीट करना है डिलीट करो, फॉर्मेट करना है फॉर्मेट करो। सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू इट। क्लियर सबको? मतलब कंप्लीट जो हमने डे 1 टू डेट अभी 8 देखा, कंप्लीटली यू कैन ऑटोमेट। सो ट्राई ऑटोमेटिंग। इसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं एक्चुअली, सो इसलिए पीपल हायर अ बीबीए डेवलपर, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इसका एडवांस वर्जन रहता है। सब कुछ ऑटोमेट होना चाहिए, इवन फाइल रिसीव ऑटोमेटिक होना चाहिए, उस पर प्रोसेस ऑटोमेट होना चाहिए, उसका डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली बनना चाहिए। ऐसा कुछ रहता है जब स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए ठीक है इतना एज अ डेटा एनालिस्ट। क्लियर सबको? यस। हाँ मग तेच ना, यू कॅन डू इट। त्याच्यावरती पण बनवू शकता, पण डेटा नेक्स्ट टाइम मॅक्रो रन करायला डेटा पाहिजे ना, मास्टर डेटा इफ यू चेंज तो वो डेटा कहाँ से लेगा? नेक्स्ट मैक्रो आपको कुछ करना है तो एक ही बार आप, मतलब इसी के ऊपर मैं फॉर्मेटिंग करूँ तो यही शीट चेंज हो जाएगा, बैक टू ओरिजिनल कैसे आऊंगा मैं? सो इसीलिए एक सेपरेट बैकअप कॉपी निकाल के हम कर सकते हैं। ओके क्लियर? सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, मे बी फॉर्म वगैरह क्रिएट करना ये वो। बाय द वे यहाँ से आप मोस्टली व्यू कोड भी कर सकते हो, कोड अलग अलग कोड देख सकते हो, मॉड्यूल्स है यहाँ पे नीचे। ये देखिए आपने कोड है डे 7 एक्सेल का, डायनामिक रेंज वगैरह। ये देखिए डायनामिक हो गया, अभी A1 सिर्फ सिलेक्ट हो गया, फिर सिलेक्शन डॉट एंड x1 टू राइट, x1 टू डाउन, फिर डाउन में कुछ भी हो सकता है, राइट में कुछ भी हो सकता है ना। पहले क्या आया था? अलग आया था, पहले डायरेक्टली वैल्यूज आए थे, राइट? दैट्स हाउ इट इज। क्लियर? सो इसके बाद ये सब कुछ ऑटोमेट होने के बाद आपने होमवर्क, पहले तो होमवर्क कंप्लीट करना है आइडियली। इफ यू आर नॉट कंप्लीटेड होमवर्क then please do complete the homework. ओके ये मैंने आपको शेयर किया है शीट, राइट? सो दिस शीट आई हैव शेयर्ड। इसके बाद डे वाइज है सब कुछ, कोर्स चार्टर, कोर्स करिकुलम, पिवट टेबल का असाइनमेंट। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 2 डेटा सेट है, आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट डेटा सेट मिनी, एक यूज्ड कार वाला प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट डेटा सेट मिनी ओपन, तो आपको डायरेक्टली ये डेटा सेट मिलेंगे अलग अलग। ओके, अलग अलग डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है। देखिए ऑर्डर्स नीचे देखिए, ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड पीपल, ये अलग अलग 3 शीट पे 3 टाइप का डेटा है। ये तीनों आपको कंबाइन करके इसके ऊपर एनालिसिस करना है आइडियली। तो आपसे कंबाइन नहीं हो रहा है तो आई हैव ऑलरेडी कंबाइंड इन कंसोलिडेटेड शीट, बट आइडियली यू शुड फॉलो ओनली 3 शीट्स, बाकी शीट आप प्रेफर मत कीजिए इफ यू वांट, राइट? तो इसके वजह सेम करना है, डेटा अंडरस्टैंड, फॉर्मेट, फिर यहाँ पे लिखिए अंडरस्टैंडिंग में अलग अलग आईडीज है, कस्टमर के नाम, सेगमेंट, सिटी, स्टेट, कंट्री, रीजन जो भी है, व्हाई, हाउ, क्यों दिया गया है, कैसे करना है, अंडरस्टैंड। फॉर्मेटिंग में करेंसी, ये वो, टेक्स्ट, डेट, जो भी रहता है वो सब आप कर सकते हो। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? देन इसके बाद डेटा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या करना है? बाय द वे डिस्काउंट को आपको परसेंटेज में करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डॉलर्स में वगैरह, शिपिंग कॉस्ट को भी डॉलर। ये टेक्स्ट है, कॉलम 1 क्या है पता नहीं, डिलीट कर सकते हो आप, आपको पता नहीं तो, है ना? देन रिटर्न्स, इसका मतलब क्या है? ये ऑर्डर आईडी जो है, ये ऑर्डर आईडी रिटर्न आया है इसका मतलब, इसलिए रिटर्न्स का टेबल अलग है। ऑर्डर आईडी कहाँ पे मिलेगा? ये देखिए ऑर्डर आईडी, मतलब ये ऑर्डर प्लेस तो हुआ है बट इसके बाद रिटर्न आया है, तो आपको कंबाइन करना है
दोनों कंबाइन करके कौन सा आईडी रिटर्न आया है कौन सा नहीं आया है, इसके ऊपर एनालिसिस करो वेदर आइटम रिटर्न और नॉट। रिटर्न आइटम के क्या प्रॉब्लम थे, क्यों रिटर्न आए, कितना कॉस्ट हो गया, कितना लॉस हो गया हमें रिटर्न आइटम के बाद पीछे, वो आप एनालिसिस करो, राइट। फिर उसके बाद पीपल नाम का है, पीपल में क्या है, रीजन, पर्सन और रीजन, रीजन हेड के नाम से, कौन से रीजन में कौन कौन सा हेड है, राइट। तो ये भी कंबाइन कर सकते हो, रीजन, रीजन तो है आपके पास, कहाँ पे है रीजन, ये देखिए रीजन है यहाँ पे, रीजन में आप कंबाइन कर सकते हो, राइट। और रीजन एंड देन, बट यहाँ पे रीजन यहाँ है तो कौन सा लुकअप लगेगा, आर यू श्योर, वी लुकअप क्या चाहिए, क्या आपको वो बताइए पहले, इस दोनों टेबल में क्या चाहिए आपको, मतलब पर्सन देख के रीजन निकालना है कि रीजन देख के पर्सन निकालना है। यहाँ पर्सन कहाँ पे कॉलम है क्या, देखिए कौन सा कॉलम है, रीजन है, तो फिर अभी रीजन देख के क्या निकालना है आपको, रीजन देख के पर्सन चाहिए ना, तो फिर कौन सा लुकअप आएगा, ऑनलाइन कौन सा लुकअप आएगा, X lookup. X lookup. हम्म, X lookup. X lookup. जिनके पास, हाँ जिनके पास एक्स लुकअप नहीं है ऑलरेडी कंसोलिडेटेड द शीट यहाँ पे रेफर कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप यू कैन टाइप मैन्युअली, सर मैच फंक्शन भी यूज चलेगा। कर सकते हैं ना उसकी। यस, मैच एंड इंडेक्स, जब जिस टाइम पे एक्स लुकअप नहीं था लोग मैच और इंडेक्स फंक्शन यूज करते थे, इफ यू वांट यू कैन यूज इट, नॉट एन इशू। मैच मतलब मैच करेगा 1 to 1, इंडेक्स मतलब ऊपर से कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इंडेक्स देता है, तो है उसके अलग कॉम्बिनेशन। यू शुड यूज अ चैट जीपीटी, फाइंड आउट अल्टरनेटिव एक्स लुकअप और वी लुकअप में वो आप कर सकते हो, है ना, मैच और इंडेक्स फंक्शन लगा के। क्लियर सबको, जब भी और ये इनसाइट्स निकालोगे ये फॉर्मेट में लिखना है, इट्स कॉल्ड रिस्टोर डेटा एनालिसिस रिपोर्ट। इसी फोल्डर में एक वर्ड फाइल है, ये वर्ड फाइल में मैंने ऑलरेडी एक सैंपल बना के रखा है आपको, पहले तो इसको मत एडिट, डोंट एडिट दिस फाइल, डाउनलोड करके एडिट करो। पीपल ट्राई टू एडिट दिस फाइल डायरेक्टली, जो कि आपको एक्सेस नहीं है, ओके, डोंट रिक्वेस्ट द एक्सेस, एडिट के लिए एक्सेस इज नॉट, आई कैन नॉट गिव यू एडिट एक्सेस ना। तो ये देखिए लिखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह स्टूडेंट नेम लिखिए, कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने, द प्रोजेक्ट अंडरटेक्स द कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस ऑफ सुपरस्टोर, ये वो जो भी रहेगा आपको इंट्रोडक्शन वो लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सेट लिखिए, मैंने कॉलम के नाम लिखिए, इसके पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, कितने कॉलम्स है, कितने डेटा है, कितना टेबल है, कितने शीट्स है, कौन कौन सा शीट ज्वाइन करना पड़ेगा, डेटा कंबाइन कैसे करना पड़ेगा, वो सब इंफॉर्मेशन आएगा ना इसमें, हर एक कॉलम में कौन सा डेटा है वो सब लिखिए। क्लियर, इतना ही नहीं लिखना है 4 लाइन मैंने लिखा है, मतलब कंप्लीट मत समझिए इसको, आपको कंप्लीट करना है। फिर डेटा प्रिपरेशन में क्या किया आपने, ये मैंने टाइटल लिखा है, इस टाइटल में अंडर भरिए सब कुछ, प्रिपेयर कैसे किया डेटा एनालिसिस से पहले, फॉर्मेट किया, कंसोलिडेट किया, कंबाइन किया, जो भी आपने किया होगा वो लिखिए। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग में कन्वर्ट ऑल द कॉलम्स, पर्सन कॉलम आईडी नल, सो चेंज द टाइप, टीबीडी टू बी डिसाइडेड, रिमूव रो आईडी नॉट रिक्वायर्ड, रिमूव पिन कोड, नो डेटा, मतलब डेटा नहीं है इसलिए डिलीट कर सकते हो, और कोई कॉलम आप एनालिसिस के लिए यूजफुल नहीं है तो वो डिलीट कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद क्विक इंसाइट कैसे निकला है, यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर, कस्टम फिल्टर, सॉर्ट, highest sale has come from ये the product no this highest shipping cost, जो भी दो एज एग्जांपल लिखा है आप भर सकते हो इसमें पूरा, ओके। देन डिटेल्ड इनसाइट्स में प्योर टेबल कॉपी कीजिए, चार्ट लिखिए, फिर नीचे इनसाइट्स दीजिए, एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे आने चाहिए, एटलीस्ट 8 से 10 चार्ट टेबल ये वो सब कुछ आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद एक्शन स्टेप्स जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज अ एनालिस्ट आपको इनसाइट्स देना है, एक्शंस देना है। एक्शन, एज अ बिजनेस heavily relied on technology product, it is recommended to look for diversification opportunities. Clear?
तो ऐसे रिपोर्ट भरना है नीचे। जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा है, लाइक इट्स नॉट कॉलेज में वगैरह सबमिट नहीं करना है। सो आपको सेटिस्फाई लगे, इफ यू फील आपको आ रहा है, यू आर कंफर्टेबल, दैट इज गुड इनफ। ओके, तो क्लियर सबको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या करना है। सेम प्रोजेक्ट आप ये डेटा सेट के लिए भी कर सकते हो, ऊपर वाला जो डेटा सेट है उसके लिए। मिनी कार का डेटा सेट है वो, यूज्ड कार का। सबको any doubts? So if any doubt, yes, Alka. सर रिपोर्ट का कोई फॉर्मेट मतलब पर्टिकुलर पेजेस में ही रहना चाहिए? हाँ, इसलिए मैडम यहाँ पे दिखा है ना रिटेल। नहीं मतलब रिपोर्ट 4 पेजेस से ज्यादा रिपोर्ट हो सकता है ना? मैडम सैंपल है ये, सैंपल। सो you are expected to create more pages. सैंपल। ओके सर। ओके, मतलब आपको क्या होता है ना सर, स्टूडेंट्स मोस्टली सर मुझे पता ही नहीं है रिपोर्ट कैसे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सो ऐसा रीजन नहीं चाहिए मुझे, इसीलिए मैंने सैंपल बना के रखा है। इसमें जितना पेजेस अच्छा ऐड करते आना चाहिए, नहीं तो नया टेम्पलेट यूज करना है, नया कीजिए, नया फॉर्मेट करना है, कैसे भी करके आपको अच्छा रिपोर्ट बनाना है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि यही यूज करना है, ये सैंपल है, इसको देख के आप यूज कर सकते हैं। कंटेंट मतलब हेडिंग वगैरह वही चाहिए। हाँ, हेडिंग क्लियर सबको। डोंट यूज 4 पेजेस, डोंट यूज वो। तो सबको क्लियर प्रोजेक्ट कैसे करना है, कौन सा डेटा यूज करना है, क्या करना है। सो होप यहाँ से आगे प्रोजेक्ट के बारे में इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स, आप अच्छे से प्रोजेक्ट सबमिट करोगे विद इन 8 days, राइट? 8 days आर गुड इनफ। यस, नो, आई नीड कंफर्मेशन क्विकली। ओके, चलो। So thank you all of. Just before closing, I need some feedback. By the way, I need feedback from all of you. तो मेरा WhatsApp पे मैसेज नंबर है सबके पास. So I want you to give me feedback. Feedback में you can mention आपको क्या अच्छा लगा, क्या improve करना चाहिए, ज्यादा फास्ट हो गया, ज्यादा स्लो हो गया, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, डेटा not able to access. Yes, today is the last lecture of Excel. Sorry. Okay. Today आज का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक्सेल आपका खत्म हो गया। इसके आगे there is nothing from my side. Okay. So इसीलिए I am asking for a feedback now. So you can share WhatsApp पे आप feedback दे सकते हैं, or else maybe you feedback, if you want to share a feedback quickly you can share now only, not an issue. So anyone interested? Okay. यस, नो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, समझ में आया नहीं आया, बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है। ओके, फास्ट है। ओके, ऑलरेडी मैम 8 days हो गए। इफ यू सी वी हैव कवर्ड ओनली 6 टॉपिक्स, नॉट मोर देन दैट। सो दैट्स व्हाई आई सेड यू नीड टू बी थोड़ा होमवर्क पे आपको फोकस करना पड़ेगा। नॉट एन इशू, आई टेक द फीडबैक, we'll see how we can improve कि इसको कैसे स्लो बना सकते हैं और कैन वी एक्सटेंड। Okay, so good, Nikita, thank you. What about others? Okay, if you please do convey, आपके मैसेज भेजिए मुझे व्हाट्सएप पे, इट विल बी यूजफुल फॉर मी, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए, और कहीं पे रेफरेंस लगाना है, कुछ है तो इट्स यूजफुल, राइट? सो दैट नेक्स्ट बैच आई कैन शेयर कि स्टूडेंट ने ऐसे ऐसे फीडबैक दिया था, सो विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट।
so that's why it is important. So WhatsApp पे मैसेज कीजिए मुझे, है ना सब लोग, एटलीस्ट हम्बल रिक्वेस्ट. चलो ऑफलाइन यहाँ पे कुछ want to anything. Okay, so good then. Thank you. Thank you Harshvardhan, thank you all. So what we can do is, if you have any doubts, maybe you can reach to me on WhatsApp platform में आप like mostly WhatsApp पे आप message वगैरह, not an issue, right? Clear? So but try to complete पॉसिबल, नहीं तो लोग भूल जाते हैं एंड देन वो आखिरी तक ऐसे ही हो जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है लोगों का, एक्सेल का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस. मतलब मोस्टली एक्सेल से ही इंटरव्यू में एक्सेल से ही स्टार्ट होता है. इफ यू डोंट नो, अभी वी हैव वन स्टूडेंट वैभव, तो उसको एक्सेल से ही पूछा था और वो इंटरव्यू था बहुत बड़े कंपनी का, डेलोइट. किसी को पता है डेलोइट कंसल्टिंग फर्म? उसको लिटरली एक्सेल से स्टार्ट किया, एक्स लुकअप, वी लुकअप. एंड में वो थोड़ा हो गया, बट ठीक है, नॉट एन इशू. दैट दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स. थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील करने के लिए लोगों को लगता है कि एक्सेल तो आता ही होगा, क्योंकि नर्वसनेस रहता है, राइट? इंटरव्यू में जब जाते हो तो नर्वस हो जाते हो, डर जाते हो, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो. सो टू मेक यू फील कंफर्टेबल, वो लोग आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3, मोस्टली एक्सेल हो जाए क्योंकि ये आसान है, सबको आता है. तो उसके बाद कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है, देन दे स्टार्ट विद देयर डिफिकल्ट क्वेश्चन, और उसको उनको जो चाहिए वो, राइट? दिस इज जनरली मोस्टली स्ट्रेटेजी पीपल यूज. नहीं तो पहला ही क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट पूछेंगे और आपको नहीं आएगा तो इट्स नॉट यूजफुल ना, उनका भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट. सो ऐसे मोस्टली पीपल फॉलो द स्ट्रेटेजी. सो होपफुली आप देयर आर कपल ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक दो तो मैंने आपको एग्जांपल दिए है जिनको वो पूछा था, राइट? वो पिवट टेबल का लिस्ट कैसे निकालता है. तो ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, नॉट अ बिग डील, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे. सो यू कैन, इफ यू प्रैक्टिस, नो, आपको वो आ जाएगा. और आई विल सम फॉर्मूला, ये वो डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, तो आई विल शेयर. ओके ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. और कल का जो लेक्चर रहेगा विल इन्फॉर्म इन द बैच. मोस्टली पाइथन का रहेगा फॉर 7 and 8. 9 का वगैरह देखते हैं क्या करना है. मे बी we'll have some other plans, or else we can continue with the Python. We'll figure it out. I will share you all the details in the WhatsApp group. Okay, so thank you, thanks a lot everyone, thank you for your time, for 8 days commitment. Chalo, thank you. Thank you, sir. Thank you. Same time and all, everything will be detailed, same रहेगा. नाही, म्हणजे देत आहे तो इंटरव्ह्यू, 2-3 इंटरव्ह्यू झालेत. आपल्याकडून 1-2 होते, पण तो बाहेरून पण अप्लाय करतोय त्याच्या थ्रू. तसंही अपॉर्च्युनिटी मिळतो, फक्त ते थोडं तुम्हाला करायला लागेल.